Hello everyone, so welcome back to another video, and from this video we are going to start with a new chapter of physics, that is magnetic effect of electric current. So as you know that in our previous videos we have completed with our chapter electricity, and now we are starting with a new chapter, magnetic effect of electric current. So here we are going to study about magnet. The word magnet is going to be used a lot of time. Okay, so पहले you should know that what is magnet. Magnet क्या होता है? देखो, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस को आयरन के, निकल के एंड कोबाल्ट के. ओके, सो इट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. Now, this is a very simple thing, and this is not going to be asked in the examination also. But for your explanation, in a very simple language, I have told you the definition of magnet is this only, right? Now, what are the properties of magnet? This is the important question that arises over here. In our books also, in my book, I have seen this question that they are asking the properties of magnet and properties of magnetic field lines. Okay, so do remember these all the things. Now, we are going to start with the properties of magnet. So the very first property of magnet is the definition only. As I told you the definition of magnet, it is the only very first property of magnet. That magnet attracts materials like iron, nickel and cobalt. Is it clear? Now second point it comes that magnet के ends पर, ओके, मैग्नेट के ना दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. ठीक है, यानी जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं उसके पोल्स पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. ओके, द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स, और वी कैन से एट द एंड ऑफ द मैग्नेट. अंडरस्टूड? थर्ड, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को थ्रेड से उसको टाई कर उसे हैंग करेंगे, then it will automatically turn towards north-south direction. Okay, so when a bar magnet is suspended by a thread, it orients itself in north-south direction. Fourth, we have when two magnets, जब हम दो मैग्नेट्स को एक क्लोजर लाएंगे, पास में लाएंगे, तो उन दोनों मैग्नेट्स के जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स क्या होंगे? नॉर्थ नॉर्थ, वो एक दूसरे से रेपल करेंगे, और अनलाइक पोल्स जस्ट लाइक नॉर्थ एंड साउथ, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे. सो व्हेन टू मैग्नेट्स आर क्लोज टुगेदर, like poles repel each other and unlike poles attract each other. Okay, so these are the only four properties of magnet. This you have to learn, okay, and you have to keep all these things in your mind. Now we are going to study about magnetic field. So what is magnetic field? See, magnet, I will explain you in my own language, then I will tell you that how you will be writing in the examination while they will be asking you the definition. Okay, so first understand it in Hindi. So just suppose एक magnet है, okay, and उससे कुछ ही उसके बिल्कुल पास में ही नहीं, एक 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक मैंने 1 मीटर या नियर अबाउट 1 मीटर या उससे थोड़ा पास में या दूर मैंने एक आयरन का पीस रख दिया. ओके, अब आपको तो पता ही है कि मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्शन लगाती है. ओके, ताकि मैग्नेट से वो आयरन अट्रैक्ट हो जाए, तो वो फोर्स लगाती है. तो वो मैग्नेट जहाँ तक फोर्स लगा सकती है किसी भी पीस पर, आयरन के या कोबाल्ट के पीस पर या निकल के कोबाल्ट के पीस पर, तो वहाँ तक, उतने डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. ओके, दैट मीन्स जहाँ तक मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकती है, उतने एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. अंडरस्टूड? सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन? Okay, you will write like this: the space around a magnet where attraction or repulsion can be experienced is called magnetic field of that magnet. Understood? Am I clear? Okay. Now what are magnetic field lines? Very simple. Magnetic field lines means, as I told you कि magnetic field क्या होता है? वो जहाँ तक अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम, जहाँ तक हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ तक मैग्नेट फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट, ताकि वो ऑब्जेक्ट उससे अट्रैक्ट हो जाए, तो
क्लियर तरीके से तो नहीं पता ना कि हाँ पूरा हमें डार्क लाइन से दिख रही हो कि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। नो ना, इट्स द इमेजिनरी लाइन, हमें नहीं दिख रही है कि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। वी आर जस्ट सिंपली एक्सपेरिमेंटिंग हियर, कि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैग्नेट रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा पास में ला रहे हैं, और जब हमें लगने लग रहा है कि हाँ मैग्नेट उस आयरन के पीस पर या कोबाल्ट या निकल के पीस पर फोर्स लगा रही है, तो हमें पता चल जा रहा है कि हाँ यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, बट लेकिन हमें दिख नहीं रहा कि यहाँ तक है। ओके, सो दीज आर ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर imaginary lines. Okay, so how you will be writing in the examination? An imaginary lines around the magnet which represent the magnetic field is called the magnetic field lines. Am I clear? Okay, now सबसे ज़्यादा important, the very most important thing over here is properties of magnetic field lines. यहाँ पे 5 properties हैं and these all the 5 properties are very important. You need to learn them. You have to just frame these all the 5 properties in your mind. Okay, so frame them. Now the very first property of magnetic field lines, here we have very first magnetic field lines property is magnetic field lines are imaginary lines, as I told you in its definition, right? So very first point is this only, that magnetic field lines are imaginary lines. Now you know the meaning of imaginary na? Please don't behave like a kid, okay? Imaginary lines, everybody know, you are in the 10th standard now, okay? Now second here, magnetic field lines are closed continuous curves, okay? अभी जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों बोला कि क्लोज कर्व कंटिन्यूस कर्व होते हैं। बिकॉज सी देखो, मैग्नेट के अराउंड ना उसके पोल्स टू पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती हैं। ओके, मतलब इसके पोल से, सो जस्ट लाइक मैग्नेट है, उसके नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट के बाहर से तो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, एंड फ्रॉम इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा क्लोज कंटिन्यूस कर्व बन गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स। ओके, थर्ड here we have the tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे, टेंजेंट मीन्स परपेंडिकुलर बनाएंगे, देन वो हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो मैग्नेट के पोल्स पर क्लोजर होती हैं, बहुत पास में होती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। आपको ये याद रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से लाइंस बहुत दूर दूर होंगी देन वो वीक होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पर बहुत क्लोज हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। Fifth point, magnetic field lines do not intersect each other. This is a very simple point. आप अपने सेंस से भी बता सकते हो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगी, बताओ मुझे। क्या कर्व्स लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. So these were the only 5 properties of magnetic field lines. Understood? Now we are going to start now one of the Oersted experiment. Okay? As you know, this is the परंपरा. ये नीति चलती हुई आ रही है कि जो भी जना जिस भी एक्सपेरिमेंट को करता है उसी के नेम से इस एक्सपेरिमेंट को रख दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही हुआ है
ये जो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है ये हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था, हैंस इट इज नोन एज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। एंड कब किया था इसे डिस्कवर? इन 1820s। अब ये कोई हिस्ट्री तो है नहीं दैट यू नीड टू रिमेंबर द सन्स, बट हाँ फॉर योर नॉलेज यू शुड बी नोन अबाउट इट कि कब किया था। नॉट नीड टू लर्न इट वेरी डीपली, बहुत ही अच्छे से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू कैन लर्न देन यू कैन लर्न इट। आई एम नॉट सेइंग डोंट लर्न इट, you can learn, but it is not that much of important. Okay, so now here इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था? लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़कर आए हो ना, यहाँ पे उसी का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो सी ऑस्टेड ने क्या किया था, उन्होंने ना थिन कॉपर वायर को उन्होंने कुछ इस डायरेक्शन में रखा था। ओके, आर यू एबल टू सी? इस वे में रखा था। और इसके पोल्स कैसे कैसे थे? इसके पोल्स ऊपर वेस्ट, इधर नॉर्थ, द साउथ एंड इधर ईस्ट। ओके, इस तरीके से उन्होंने थिन कॉपर वायर के कंपास को रखा था। ओके, और इससे बैटरी कनेक्ट कर दी थी। ओके, बैटरी कनेक्ट की थी इस तरीके से। ओके, एंड इसके प्लस नेगेटिव इधर थे। ओके, नाउ आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पता है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर वाली साइड में है? साउथ वाली साइड में है ना, मतलब साउथ जो जिधर है उधर वाली साइड में तो है ना पॉजिटिव, यानी करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो होगा, है ना। आई करंट विल फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जब उन्होंने बैटरी के टर्मिनल्स को इस फॉर्म में लगाया ताकि करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो सके, ठीक है, तब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब करंट को साउथ टू नॉर्थ फ्लो करवाया, देन जो निडल थी कंपास की, इट वॉज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। उन्होंने देखा when the current was passed from south to north, the needle of the compass deflects towards west. Okay, and अब उन्होंने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। अब उन्होंने नॉर्थ वाली साइड में पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और इधर नेगेटिव। अब हमें पता है अब इनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जो करंट होता है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही जाता है, हमेशा फ्लो होता हुआ। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, इसीलिए उनको बैटरी को थोड़ा पलट के लगाना पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ से अब करंट कहाँ से जाएगा? नॉर्थ टू साउथ, और उन्होंने जब नॉर्थ टू साउथ करंट पास कराया, then he noticed that the needle of the compass deflect towards east. Okay, deflect towards east. Understood? Now why does happen so? ऐसा क्यों हुआ? So see, हमेशा आपको यही कंक्लूजन ही यही होगा। आपको ये सब पता है कि उन्होंने ये सब किया, बट इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? तो कंक्लूजन देखो इसका, जो हमारे करंट फ्लो हो रहा है, आपने सुना एक नाम कि जब करंट फ्लो कराया तभी ऐसा हुआ। तो करंट के अंदर ना, जब करंट फ्लो हो रहा था तो मीन्स उसके अंदर में मूविंग चार्जेस थे, एंड मूविंग चार्जेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी। ओके, एंड वो जो वायर था वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा था वहाँ पर। दैट इज वाई दैट कंपास ऑफ निडल वाज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स दैट वायर। ओके, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसीलिए निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। ओके, एम आई क्लियर? सो देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे इस चीज़ का कोई कंक्लूजन पूछे दैट व्हाई वाज निडल डिफ्लेक्टिंग, you will say that we noticed that when the current was flowing, then only the needle was reflecting. That means in the flowing current there was moving charges, and those moving charges had a magnetic field,
and that a wire was acting as a magnet. Okay, that is why we found that needle was deflected. Hence this shows that magnetic field is produced. Okay, hence we notice that magnetic field is produced. अब आपसे कोई भी पूछ सकता है इस वे में कि नेम टू वेज या वन वे जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो. सो आप कैसे दोगे? फर्स्ट तो हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसा कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने देखा. ओके, और कैसे कर सकते हो वो मैंने अभी आपको बताया. सो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? तो बस यही था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. Now we are going to read some of the cases of magnetic field. मतलब वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है. ओके, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, किस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ, ये हम पढ़ेंगे. अब वायर्स हम 3 टाइप के वायर्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट तो हो गया हमारा एक स्ट्रेट वायर, सेकेंड हमारा सर्कुलर वायर, और एक हम एक सॉलिनॉइड में पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. यहाँ पे भी अब जस्ट सपोज ये एक स्ट्रेट वायर है. ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स इससे बैटरी कनेक्ट है और करंट फ्लो हो रहा है. बस आप ये समझो कि करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी? हमेशा सेम रहेगी. तो आप बस इस चीज़ को याद रख लो कि स्ट्रेट वायर के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर किसी को नहीं पता तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जैसे देयर आर 4 सर्कल्स. ठीक है, एक सर्कल. अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आप जब ऊंचाई से जब आप ऊपर खड़े होते हो और ऊपर से आप पानी में एक छोटा सा पीस फेंकते हो स्टोन का, ओके, या मार्बल का या रॉक का. ठीक है, किसी का भी अगर आप पीस फेंकते हो पानी में तो क्या होता है, उस पानी के अंदर गोल गोल से कॉन्सेंट्रिक सर्कल आते हैं उस एरिया के अराउंड. मतलब जहाँ पत्थर आपने फेंका होगा उसके अराउंड आपको बहुत सारे सर्कल्स से दिखेंगे. ओके, बहुत सारे सर्कल्स से दिखेंगे. सो वही आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बेसिकली वो होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर एक ही हो. ओके, जिन सर्कल्स का सेंटर एक ही हो. और वो कैसे हो सकता है, जैसे एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, उस सर्कल के अंदर एक सर्कल, तो इन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है. तो ये क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. क्लियर? सो ये आप याद रखना. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. या उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ. राइट एंड थंब रूल क्या होता है. आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं राइट एंड थंब रूल से. अब आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप कैसे बताओगे? सी, फॉर दिस आई नीड टू शो यू. सो लुक हियर, आई एम शोइंग यू वन वीडियो थ्रू माई हैंड्स, तो आप उससे पता लगाना. Okay, so look here now. Just suppose this is a straight wire. Okay, ये straight wire है. Just suppose, और इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है upward. So by right and thumb rule, you have to take your hand like this, and this thumb represent current. कि करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, then you will keep your thumb upward like this. Okay, and if current is flowing downwards in this wire, then you will keep your thumb like this. Okay, now first
we will see the direction of current when the current is flowing upward in the straight wire. So we will keep our thumb like this, and these four fingers represent the direction of magnetic field. So as I told you that in a straight wire current flows in a concentric circle form. So ये concentric एक circle हो गया जिसका center एक ही है बीच में, but we are not able to see it. Okay, so एक circle ही हो गया ये. So देखो ये straight wire, take your thumb, keep it like this and hold it. Okay, hold it like this. So what we are able to see that when the current is flowing upward, then direction of magnetic field is from here. Okay, that means like this, from here, like this. Okay, like this. So direction of magnetic field is from here, from right side, like this. Okay, understood? Am I clear? So this is when current is flowing upward. Now in the same wire, in the straight wire, when current is flowing downwards, जब current downwards flow हो रहा है, so I will keep my thumb downwards, then the direction of magnetic field is from here to here. Okay, from here to here. Okay, that means from left to right. और ये हमेशा same ही रहेगी. Okay, so I hope it is clear. Once again I am telling, when in this straight wire, take your right hand and make it like this. This represent current. Keep it like this. When the current is flowing upward, then keep it like this and hold your hands like this. Okay, like this. That means current is flowing from right to left, right to left, right to left. Okay. Now when the current is flowing downwards, then keep your thumb like this and hold your hands like this. That means the current is flowing from here, from left to right. Okay, I hope it is clear now. So now let's get back to the screen.